ढाला गया है, एक फील दिलाने की कोशिश की गई है पर्यटकों को जो यहां पर आए। और इस समय जो है माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी इस जंगल सफारी के अलग अलग आयामों को देखते हुए, समझते हुए आज सरदार पटेल प्राणी उद्यान को माननीय प्रधानमंत्री ने राष्ट्र के नाम समर्पित किया। A beautiful spot, a quiet stream, perfect place to just rest a while after that exciting walk or ride through the jungle. This also makes a wonderful place to stop and take a few photographs. A keen interest in the environment, questions are always asked, and suggestions are always given wherever the Honorable Prime Minister feels that there is room for improvement. Most of the trees are natural to this area, but a lot more trees from various parts of the country have been planted here, keeping in mind the environment that some of the animals need for their habitat. Children watching this program live today must be pestering their parents to plan a holiday to Kevadia to experience and savor the sights and sounds of the Statue of Unity and all the wonderful sites that have been developed here. बीच बीच में माननीय प्रधानमंत्री सुझाव भी देते हैं। अभी जब वो वाटरफॉल देख रहे थे, वो इस प्राणी उद्यान में बहुत बारीकी से नजर रखते हैं और सूबे के जो मुख्यमंत्री हैं विजय रूपाणी, वो भी मुआयना कर रहे हैं इस जंगल सफारी का। वो भी बहुत नजदीक से चीजों को समझ रहे हैं, जान रहे हैं और लंबे समय तक इसे इसी स्वरूप में बनाए रखने के लिए या इससे भी बेहतर स्वरूप में ले जाने के लिए, चूंकि जब पर्यटक आना शुरू हो जाएंगे तब इसको इस तरीके से मेंटेन रखना एक बड़ी चुनौती होगी। उसके लिए एक बेहतर प्रबंधन की जरूरत है और इससे बढ़िया अवसर नहीं मिल सकता है जब आप शुरुआत में ही चीजों को देखें, समझें, परखें और उसके बाद उसको और बेहतर करने के लिए प्रयास करें। This area has been so beautifully designed and landscaped that I'm sure there's very little that needs to be changed. And that itself is an art, to landscape a place which, and to fit it in with the theme. We can see the water also flowing. Fit it in with the theme of unity, which is visible and a curious around. Denizen of the jungle. Yes, indeed. Trying to see what's going on. But all the animals seem to be quite at ease. They are not afraid of anything, quite happy in this environment. Especially the birds. Yeah, exactly. To create this kind of trust, it needs a lot of effort where the caretakers are concerned that none of these animals seem to be afraid of a closeness to human beings. और इस तरह की जंगल सफारी हो या कोई प्राणी उद्यान यानी जू,
जो परस्पर विश्वास की बात है उसमें मनुष्य की भूमिका अधिक महत्वपूर्ण है, क्योंकि वो काम मनुष्य को ही करना है। और यहाँ ये चीज साफ तौर पर देखी जा सकती है, चाहे वो पशु हो या पक्षी। एक विश्वास, एक भरोसा कि यहाँ वो सुरक्षित हैं, यहाँ ये जगह उनके लिए एक बहुत ही बेहतर जगह है। और वाकई जिस तरीके से इसका निर्माण किया गया है वो अपने आप में अद्भुत है। जैसा हमने पहले भी कहा था कि यहाँ सब कुछ है, नदी भी है, जंगल भी है, पहाड़ भी है, सब कुछ है। और हमने थोड़ी देर पहले देखा कि यहाँ झरना भी है। So And the these success- symbols of peace. Yes. Actually, the success of any of these kind of of a zoo like this or any safari like this is that the animals are at, you know, in an environment where they are looking active, they are looking vigorous, they don't look like they are troubled in any way. And this is a sign that it is working. It is actually something that is feasible and self-sustaining. When we look at the way the animals look, so, you know, it's been designed in a way that they are vigorous and active. Because if they are otherwise in any other way, then they are unhappy, and then, you know, it tends to move into a regressive atmosphere. बहुत से पशु पक्षी जिनमें से कुछ को तो आमतौर पर लोग पहचान लेते हैं। And a little friend following the golf cart, hoping to make introductions. एक हिरन लगातार गोल्फ कार्ट के पीछे पीछे। ये अद्भुत दृश्य हैं यहाँ के जंगल सफारी के। और जैसा कि हम सब जानते हैं कि हम में से कई लोग कुछ पशु पक्षियों को तो पहचान लेते हैं, तोता, कबूतर वगैरह, लेकिन यहाँ हिरन भी कई तरह के, एंटीलोप श्रेणी के, प्रजाति के, और सारस, बगुले बहुत हैं। उनमें से कईयों के नाम तो जब लोग आएंगे तो बाहर जो पट्टी लगी होती है उसको पढ़कर ही जान पाएंगे कि ये कौन सा पक्षी है और ये कहाँ का है, कहाँ पाया जाता है। क्योंकि इस जंगल सफारी में अफ्रीका, साउथ अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया, इन महाद्वीपों से भी यहाँ पशु पक्षियों को लाया गया है। और एक अपने आप में एक ऐसा अनुभव ये बनने वाला है यहाँ आने वाले हर उस पर्यटक के लिए जो इस इलाके में आएगा और इतनी तमाम चीजों के साथ जब पहुंचेगा यहाँ जंगल सफारी में। And also what happens is when you have an environment like this, birds do tend to come in on their own when the seasons change. So this is really a safe place for them to come, and a beautiful duck. So a number of exotic birds. We've seen, in fact, there are cockatoos, pheasants. There is also a black swan. There's a grey parrot. That perhaps was the black swan. Could well have been, yes. What happens is when you see a lot of these animals in pictures, and when you see them like this, it's sometimes difficult to distinguish one from the other. Lessons for most of us who have come here, that we need to spend more time, increase our knowledge, and enjoy this interaction with animals. आगे बढ़ता हुआ प्रधानमंत्री का काफिला और ढलती हुई सूरज की रोशनी मध्यम होती हुई, थोड़ी मुलायम होती हुई। कलकालिया झरना, जिसको प्रधानमंत्री ने बहुत नजदीक से निहारा, किंगफिशर वाटरफॉल के नाम से भी उसे यहाँ पर जंगल सफारी में जाना जाता है। और जो भी पशु पक्षी हैं यहाँ पर, वो बहुत ही आराम से अपने पूरे प्राकृतिक आवास में आनंद लेते हुए, और ऐसा लग रहा है कि एकता की प्रतिमा सरदार वल्लभ भाई पटेल एक अभिभावक के रूप में इन सभी चीजों को निहार रहे हैं, देख रहे हैं। और पशुओं में भी एक कौतूहल सा है, वो
ये काफिला देख रहे हैं, उन्हें लग रहा है कि आज उनके जंगल सफारी में कुछ नए मेहमान आए हैं, तो नए मेहमानों के स्वागत के लिए कहें या उनसे जुड़ने के लिए कहें, एक अजीब सा उनके अंदर कौतूहल है। वो देखने को भी मिल रहा है कि प्रधानमंत्री के काफिले के पीछे पीछे काफी देर से एक हिरन जिज्ञासावश पीछे पीछे चहलकदमी करते हुए। The deer hasn't lost hope because these are visitors to his home. And he's trying to ensure that they are well looked after and they are welcomed to this wonderful safari where he lives. जगह जगह पर बस स्टॉप की भी व्यवस्था की गई है कि अगर आप थक गए हैं या फिर कुछ समय बिताना चाहते हैं तो आप वहां रहें। और जैसा कि हमने कहा कि पशुओं में भी एक कौतूहल सा है। माननीय प्रधानमंत्री का काफिला जंगल सफारी में आगे बढ़ता हुआ, बहुत ही बड़ा क्षेत्र है, 375 एकड़ में फैला ये जंगल सफारी, और एक छोर से दूसरे छोर तक जाने में समय लगता है और बहुत ही बेहतर ढंग से इसे डिजाइन किया गया है। हमने कई बार कहा कि अलग अलग ऊंचाइयों पर है और इसको इसी ढंग से बनाया गया है कि आप धीरे धीरे ऊपर चढ़ते जाएं और आपको ज्यादा एहसास भी ना हो और आपको घूमने का, चीजों को देखने का, समझने का, जानकारियां इकट्ठा करने का पूरा आनंद मिले। So the jungle safari, when it was conceptualized, has kept the natural undulations, the natural topography of the area. We are, after all, in the midst of the hills of the Vindhyachal and Satpura ranges. And these are the beautiful, colorful, exotic birds. Cockatoos with hues of the rainbow. मैं कहो और किसी तरह की कोई परेशानी नहीं हो रही है पक्षी को। ऐसा लग रहा है कि बहुत जान पहचान है। अगर हम अपने घर में किसी पक्षी को रखते हैं तो एक दोस्ती सी हो जाती है, लेकिन माननीय प्रधानमंत्री के आने पर भी बहुत सहज, सरल और एक बहुत ही मनमोहक दृश्य इस समय। This one looks like a shy child who needs to be gently nudged towards a visitor. And once they make friends, then a conversation is definitely going to ensue. बड़ा दिलचस्प दृश्य है कि कुछ जो मेजबान हैं वो नए मेहमान का स्वागत कर रहे हैं और कुछ भोजन के अलावा उन्हें कुछ नजर नहीं आ रहा। पृष्ठभूमि में काफी बड़ी संख्या में जो निवासी हैं और अब मेजबान का बाकायदा स्वागत किया जा रहा है उन्हें भोज्य पदार्थ देकर माननीय प्रधानमंत्री महोदय द्वारा। बहुत ही आकर्षक दृश्य है, You must also keep in mind that यादगार this दृश्य है। is a bird that is so beautiful with such lovely hues. So it is going to show a bit of the diva temperament. So while the others came to the Prime Minister, this one expected to be nudged towards the Prime Minister. और जो भी भोज्य पदार्थ दिया गया है उसका पूरी तरीके से सेवन किया जा रहा है इस पक्षी के द्वारा। अनोखा दृश्य है ये, और ये दृश्य अपने आप में इस बात को पूरी तरीके से साबित करता है कि जो प्राकृतिक वातावरण है जिसमें इन पक्षियों को रखने का प्रयास हुआ है वो पूरी तरीके से कामयाब है, पूरी तरीके से सफल है। और साथ ही जो भी यहाँ मेहमान आए, जो भी पर्यटक आए आगे आने वाले दिनों में, वो पूरी रिस्पेक्ट दें इन निवासियों को, जो कि इनमें से बहुत से ऐसे हैं जो अपना मूल निवास स्थान छोड़ करके हमारे देश आए हैं। तो सही अर्थों में कहें तो वो भी जंगल सफारी के निवासी हैं लेकिन भारत के मेहमान हैं। और बड़ी संख्या में हिरन यहाँ पर मौजूद हैं। कुछ देर पहले हमने देखा कुछ राजस्थान से पहुंचे हैं, कुछ अलग अलग जगहों से आए हैं। 12 प्रकार के हिरन हैं, एंटीलोप हैं, जेब्रा हैं,
बहुत ही दिलचस्प और खूबसूरत नजारा। और अपनी टेलीविजन स्क्रीन पर आप जब ये दृश्य देख रहे होंगे तो निश्चित तौर पर उत्कंठा, कौतूहल, जिज्ञासा आपके मन में विचरण कर रही होगी कि क्यों ना जल्दी से जल्दी ऐसी जगह पर जाया जाए जहां पर इतने बेहतरीन माहौल में पक्षियों को रखा गया है, पशुओं को रखा गया है, और हम उन्हें कितने करीब से उनको देख सकते हैं, उनके बारे में जानकारी हासिल कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। और जो प्राणी विज्ञान के छात्र छात्राएं हैं उनके लिए, या फिर जो ऑर्निथोलॉजी में, पक्षी विज्ञान में जो दिलचस्पी रखने वाले लोग हैं, उनके लिए तो बहुत ही बेहतरीन ये माहौल तैयार किया गया है। सरदार सरोवर बांध पृष्ठभूमि में दृष्टिगोचर होता हुआ, जिसके एक तरफ 182 मीटर ऊंची सरदार पटेल की प्रतिमा, एक्सोटिक एवियरी है ये, 125 मीटर जिसकी लंबाई है, 35 मीटर चौड़ाई, और बड़ी संख्या में जहां पर पक्षी निवास कर रहे हैं, उल्लसित हैं, प्रफुल्लित हैं। और माननीय प्रधानमंत्री महोदय भी पूरी जिज्ञासा के साथ, उत्सुकता के साथ अवलोकन कर रहे हैं इस प्राणी उद्यान का। साथ में गुजरात के मुख्यमंत्री श्री विजय रूपाणी और गुजरात के राज्यपाल आचार्य देवव्रत भी, अन्य वरिष्ठ अधिकारी उनके साथ लगातार मौजूद इस प्राणी उद्यान में। Hidden in the foliage is the Carolina duck, an exotic bird not often seen in India. When you go to the various parts of the Sardar Sarovar Dam complex, you find that part to be really the best. So when we saw the children's nutrition park, it was so exciting and so attractive that if children were watching it, I'm sure they wanted to go there. Now that they're looking at the zoo, this seems to be the most attractive. So in that sense, all the features that have been created here seem to have the most attraction. जी हाँ, बिल्कुल। यहाँ आने वाले पर्यटकों के लिए ये चुनना बेहद मुश्किल होने वाला है कि कौन सा उनका पसंदीदा स्थान होने वाला है और किस जगह पर वो बहुत ज्यादा देर तक समय बिताना चाहते हैं, क्योंकि हर एक का अपना आकर्षण है, हर एक की अपनी रोचकता है, और जिसके बारे में जितना कहा जाए उतना ही कम। इस समय मोर, और जहां भी आपकी नजरें जाएंगी इस जंगल सफारी में, वहां कुछ अनूठा, अद्भुत देखने को मिलेगा, रोमांचित करने वाले दृश्य। Well, a person who comes to this place will like to visit all these places, not just one. So, and it would probably be over a few days, not just one day as well. So I think that a person can plan a visit and to visit not only the jungle safari, but also the children's park, the nutrition park, as well as the Arogya One and the Ekta Mall that we have seen so far. So it's like a visit to a confectionery shop where everything is so attractive and colorful that you want a bit of everything. और प्रधानमंत्री की सोच भी यही थी। जब एकता की प्रतिमा का निर्माण हुआ तभी उन्होंने कहा था कि जो लोग स्टैच्यू ऑफ यूनिटी देखने आए वो केवड़िया में कम से कम 2-3 दिन तक रहें, और पर्यटकों को बांधे रखने के लिए ये बहुत जरूरी था कि आसपास के इलाके में कुछ ऐसी चीजों का विकास किया जा सके जो पर्यटकों को अपनी ओर आकर्षित करे। और उसी सोच के तहत यहाँ पर काफी सारी चीजों का निर्माण किया गया है। जैसा कि हमने पहले दिन के पहले सत्र में देखा कि आरोग्य वन को प्रधानमंत्री ने राष्ट्र के नाम समर्पित किया, फिर एकता मॉल, फिर पोषण पार्क, और अब ये जंगल सफारी। एक महत्वपूर्ण बात ये होती है कि एक विचार अपने आप में बहुत कमाल होता है, लेकिन उस विचार को साकार करना
और फिर उसके बाद उस विचार से और विचारों को जोड़ देना और उनको भी साकार करना, ये वाकई बड़ा अद्भुत और बड़ा कठिन सा लगने वाला काम होता है। लेकिन हमने ये सब देखा है और देख रहे हैं। आज इतनी परियोजनाओं का एक एक करके उद्घाटन किया जा रहा है। ये अपने आप में ऐतिहासिक भी है, महत्वपूर्ण भी है, और सबसे बड़ी बात यह है कि जिस दौर से दुनिया गुजर रही है उसमें ऐसा सोचना और ऐसा कर लेना, ये अपने आप में उल्लेखनीय है। And what is even more amazing is that this entire place has been developed in a very short time. So time factors to meet these kind of deadlines is really amazing. इसके लिए लगातार सोच और मॉनिटरिंग, और उसके साथ साथ कहीं भी जिसे कहते हैं क्वालिटी में कॉम्प्रोमाइज नहीं करना। आप टेक्नोलॉजी के साथ जो आपको हैरान करती है जो चीज कि टेक्नोलॉजी किस तरह से लोगों की जिंदगियां बदल सकती है या उनमें असर ला सकती है, वो धीरे धीरे हमारे आसपास अब दिखने लगा है। हम देख सकते हैं उसका असर किसी भी नई चीज के निर्माण में या किसी भी सुविधा में या किसी भी जानकारी को पाने में। So among the birds that we've been seeing in these aviaries, we've seen the red jungle fowl, the partridge, the pelican, the ibis. We've seen various kinds of parrots. And in the exotic aviary, we've seen the macaw, the cockatoo, we've seen pheasants. There was also a black swan, grey parrot, Cape-crowned crane, among other birds which are colorful. And these birds come from different parts of the world: South America, Australia, Southeast Asia, Africa, and other parts of the globe. पक्षियों की अटखेलियां, और इन अटखेलियों को देखना, नजदीक से देखना बहुत रोमांचित करता है। प्रधानमंत्री इस समय सरदार पटेल प्राणी उद्यान, जो जंगल सफारी के नाम से लोकप्रिय है, उसमें भ्रमण कर रहे हैं। सरदार सरोवर बांध के नजदीक ये प्राणी उद्यान, विहंगम नजारा, 375 एकड़ क्षेत्र में फैला ये जंगल सफारी, कई विविधताओं, कई अनूठेपन को समेटे हुए। देशी विदेशी पशु पक्षी रोचकता को समेटे, जिज्ञासा बढ़ाने वाले, आने वाले समय में जो भी केवड़िया पर्यटक आएंगे उनके लिए ये बहुत ही खास स्थान बनने वाला है। And we can see also that the safari route has been designed in such a way that the visitors can see animal activities, they can spot the birds, and in a way they can engage with them and feel a part of their environment. And that's precisely what we did see as the Prime Minister and the other groups along with the Prime Minister were traveling around in their golf carts, which were electric and did not disturb the animals in any way. We can see this is the black swan. We can only see the head of it. तो वो चीज करने के लिए पहले तो हमारे आज कोई भी झगड़ा का काम हो, हिसाब का काम हो, घंटा का काम हो, तो 5 साल काम करते हो और हम लोग तो नहीं पूरे हो। हमारा काम तो गुलामी में से थोड़ा। Cranes have always been a part
of India's mythology, and it plays a very important part in the culture of Japan. तो हर चीज में हम एक प्रकार की माननीय प्रधानमंत्री महोदय अलग अलग एनक्लोजर्स का जायजा लेते हुए, अवलोकन करते हुए, पूरी उत्कंठा के साथ, पूरी जिज्ञासा के साथ, पूरी दिलचस्पी के साथ और साथ ही बहुत नजदीक से अनुभव करते हुए जो परिकल्पना, जो उन्होंने प्रण किया होगा, निश्चय किया होगा अपने मन में 2 वर्ष पहले, 3 वर्ष पहले, वो साकार हो रहा है। गुजरात के मुख्यमंत्री के तौर पर भी खासी दिलचस्पी ली थी माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने इस प्रोजेक्ट में, और यहाँ केवड़िया परिसर में अब जबकि तमाम सुविधाओं का निर्माण हो चुका है, वो सभी जो परिकल्पनाएं हैं मूर्त रूप ले रही हैं। इंडियन एवियरी जियोडेसिक डोम, अबोर्ड ऑफ कॉर्निवोर्स और जिराफ जो कि अपनी खास अपीयरेंस की वजह से जाना जाता है, उसके भी दर्शन हमें यहाँ पर हो सकते हैं। ज़ेब्रास काफ़ी संख्या में मौजूद हैं। जिराफ मूलतः अफ्रीका से आते हैं। 4.5 से 6 मीटर के बीच उनकी ऊंचाई, 4 से 6 घंटे तक नींद लेते हैं, रफ्तार 60 किलोमीटर प्रति घंटे की। और वहीं दूसरी ओर ज़ेब्रास हैं जो कि अलग अलग जगहों से आते हैं। भारत में भी